Hi everyone, welcome to my channel. Today we'll be studying lesson number 2.2. The title of the lesson is Three Questions. The three questions, okay? Now as we go through the lesson, we will understand ये three questions का मतलब क्या है. The three questions is actually three questions posed by a king to a wise man, okay? So before we go to the lesson, let us warm up with your exercises on the page number 50 and 51, okay? Let's warm up. The first exercise we have to do is match the column A to column B, okay? So here are some words that are given. We have to match them with the meanings, okay? So now let's see what is the meaning of principle. Principle means a rule to govern one's behavior, okay? So everywhere we go, even our schools, हमारे जो schools है, हमारे जो work places है, offices है, हर जगह there is a principle of behavior, okay? There is a rule according to which we have to behave, okay? So that is called a principle, okay? Now quotation. What is a quotation? Word cited from a speech or text of a famous person. Suppose a famous person has said something in his speech and you liked it. When you present your speech to somebody else and you would like to use the words that a famous person has used, what will you do? You will call it a quotation. जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अगर कुछ अपने स्पीच में बताया है जो आपको पसंद आया है और आप किसी और को बताना चाहते हो तो आप क्या बोलेंगे? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दिया उसका एक कोटेशन ये है. इट्स टेकन फ्रॉम द स्पीच और टेक्स्ट ऑफ अ फेमस पर्सन, ओके? मॉरल क्या है? हम लोग बचपन से छोटे से स्टोरीज पढ़ के आते हैं ना, लाइक द क्रो एंड द water, how the crow did not give up and put stones in the water till the water came up. So what lesson do we get? What moral lesson do we get from that? That never give up. ऐसे बहुत सारे स्टोरी छोटे छोटे हम स्टोरीज पढ़ते आ रहे हैं ना, उसमें लास्ट में वी गेट टू लर्न समथिंग. सो दोज आर कॉल्ड मॉरल्स, ओके? idioms are established expressions which do not convey exactly the same as individual words, ठीक है? वो कहावतें टाइप की होती हैं जिसका meaning will not be exactly what the individual words are saying, okay? Now we'll see the examples later on. Slogans are short striking messages for the public. मतलब छोटे छोटे sentences जिससे कुछ मैसेज कन्वे किया जाता है पब्लिक को. जैसे आप बहुत सारे बैनर्स में जो रोड में लग रहे थे उसमें आप जो पढ़ते हैं ना टाइटल्स, वो सब स्लोगन टाइप के होते हैं, ओके? So those are called slogans, short striking messages for the public. Then one-liners, a short witty remark stating truth. One-liners होते हैं जैसे एक सिंगल लाइनर से कुछ जोकिंग टाइप रिमार्क, हम छोटा सा शॉर्ट एकदम रिमार्क, उसको कहते हैं one-liners, ओके? फिर मैक्सिम्स आर जनरली एक्सेप्टेड एविडेंट ट्रूथ. एक सच्चाई वाली बात जो एक्सेप्टेड बात है उसको जो स्टेट करते हैं उसको मैक्सिम कहते हैं, ओके? Proverb is a popular well-known truth. Proverbs तो हमने बहुत सारे सुने हैं. तो proverbs are a popular well-known, जाना माना सच्चाई is called a proverb, okay? Now let's get ahead with this. Second exercise is read the polite requests or suggestions and complete the gaps in the responses. Make sure they are polite and not repeated, okay? तो इधर एक expression दिया है which is a polite request or suggestion, ठीक है? Now we have to give them two answers. One is acceptal and refusal, okay? Acceptance and refusal. Now accept करने के लिए आप इसको कैसे politely इसको refuse करोगे या accept करोगे वो आपको लिखना है, और इसको कैसे politely refuse करोगे accept करोगे. ऐसे 4-5 exercises है. Let's do a few and you can also try a few on your own, okay? Or maybe you can modify this for yourself. Could you lend me your dictionary? तो अगर आप हाँ बोल रहे हो, if you are able to lend, what will you say? ये उल्टा हो गया, मैंने एरो लगाया है, ये ऊपर जाना चाहिए था, मैंने गलती से इसे नीचे वाले में लिखा है. तो आप अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या बोलोगे? श्योर बट प्लीज रिटर्न इट सून. Isn't that a polite way of saying yes? Could you lend me your dictionary? Sure but please return it soon. फिर अगर आपको रेफ्यूज करना है तो आप क्या बोलोगे? No, I need it for my exam tomorrow, okay? So that's also a polite way of saying. Instead of just saying no, I cannot give it to you, you give a reason along with that. So what will you say? No, I need it for my exam tomorrow, okay? Let's try the next one. Can you please pass the salad? So how will you accept it? Yes, of course.
and then you pass the salad. Okay, if you have to refuse, what will you say? I'm sorry, the salad is over. जो जिसने मांगा है शायद उसने देखा नहीं होगा कि खत्म हो गया, तो he asked, तो आप क्या बोल सकते हो? I'm sorry, the salad is over. आप इसको और भी कुछ तरीके से रेफ्यूज कर सकते हैं, आपके दिमाग में और कुछ है तो. Then let's see this one. May I know the exact time? अगर आपके पास घड़ी है तो आप तो बता सकते हैं, है ना. अगर नहीं है तो कैसे बताओगे? तो अगर आप एक्सेप्ट करना है तो क्या बोलोगे? May I know the exact time? Yeah. Yes, the exact time is 6 p.m. You can write yes here. Yes. The exact time is 6 p.m. Now, may I know the exact time? If you cannot, what will you say? I don't have a watch. I'm sorry, I don't have a watch. You can write that. Or I don't have a watch. I'm sorry. Okay. So that's a polite way of refusing. Then, shall we plan a class picnic? Suppose आप जा सकते हो तो आप क्या बोलोगे? Why not? That would be a great idea, है ना. लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो आप क्या बोल सकते हो? Oh no, I won't be able to make it. Let's plan for some other day, है ना. Isn't that polite? Now, do you need help? How will you accept it? Yes, I need help. Thank you. Do you need help? If you don't need help, what will you say? No, thank you. है ना. Thank you बोलना जरूरी है because that other person offered help to you. Now, is it all right if I use your laptop? अगर आप okay हो तो क्या बोलोगे? Sure, you can use it all day, or maybe you can use it for half a day, however more, whatever is convenient for you. But if you have to refuse, what will you say? I need my laptop today for preparing a presentation. I'm so sorry, I can't lend you my laptop. Or you can stop it, I'm so sorry. Okay, so this is a polite way of accepting or refusing. All right, now let's see this third exercise. Let's see if you remember a nursery rhyme you must have sung as a kid. शायद आपने ऐसी nursery rhyme गाई होगी. अभी इधर आपके ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं. इस वर्ड्स के थ्रू let us fill this up. Okay, the time to be happy is now. The place, the dash to be happy is here. इधर क्या आएगा? कहाँ आप खुश हो सकते हो? जहां पर आप अभी हो, है ना. The place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here, है ना. So this is how you have to fill this up. Okay, now let's get to the lesson number 2.2, the 3 questions. Now this story has been written by Leo Tolstoy. Okay, Leo Tolstoy, he was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. इनके बहुत ही सुंदर stories हैं. He first achieved literary acclaim. Literary acclaim मतलब लिखने में उनका जो फेम आया था वो कहाँ से आया था? कब आया था? In his 20s. जब वो 20s में थे, मतलब 20 से 30 के बीच में थे, वो टाइम उनका he became famous with his autobiographical trilogy Childhood, Boyhood and Youth. तो किस लिए वो फेमस हो गए थे? How did he achieve literary acclaim? With his semi-autobiographical trilogy, Childhood, Boyhood and Youth. Okay. Now, a parable is a short story with a moral lesson. हमने बहुत सारे parables सुने हैं. Okay. Now, these are short stories with a moral lesson. A parable usually has human characters. This parable concerns a king who wants to find the answers to what he considers to be the 3 most important questions in life. All right. तो एक राजा है, उसको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब चाहिए. तो वो एक क्या करता है, चलो हम देखते हैं. ओके, लेट्स सी. तो दिस इज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय. ओके, once a certain king had an idea. Please read along with me to improve your reading skills. Okay, I'm not reading for my sake, I'm reading for your sake, so that your reading skills improve and you're able to speak well. Once a certain king had an idea. Certain king क्यों बोला है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर किंग के बारे में बात नहीं करे, एक राजा के बारे में बात करे. certain king had an idea. अभी ये मतलब अगर नाम होता तो अलग बात होती थी, हमको पता. एक किंग था जिसके बारे में उसको एक आइडिया आया एक दिन. क्या आइडिया आया? If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and who to avoid, the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake. And above all, if he always knew what was the most important thing to undertake. इधर एक incomplete sentence है, हाँ, ये printing mistake लग रहा है मुझे. ओके, सो ये जो पैराग्राफ का मतलब क्या है? एक किंग था, ठीक है, वो उसका ऐसा सोचना था कि अगर उसको हमेशा
सही समय पता होता कब चीज़ें शुरू करनी है, और सही लोग पता होते जिनके थ्रू ये काम शुरू करना है, जिसकी बात सुननी है और किसको अवॉइड करना है, तो फिर वो जो भी काम करने के लिए शुरू करेगा उसमें वो फेल नहीं होगा. So what idea did the king have? He had the idea that if he knew the right time and the right people, then whatever he and the most important thing to do, and whom not to include or whom to avoid, he would never fail. Since he was convinced that he was right in thinking this way, he had a proclamation made in his kingdom. अभी वो सोच रहे थे कि ये तो एकदम ही सही तरीका, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोक्लेमेशन या तो अनाउंसमेंट. जैसे हम लोग कभी कभी यहाँ पर अभी कोरोना वायरस के टाइम आप सुनते होंगे, बहुत सारे पुलिस जीप में घूम के अनाउंसमेंट करते हैं ना, कुछ बताते हैं ऐसा मत करना वैसा करना एंड ऑल. तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोक्लेमेशन. सो उन्होंने क्या किया, उस टाइम तो घोड़े में सवार वाले सोल्जर्स जाके प्रोक्लेम करते थे. तो वो लोग ने जाके क्या प्रोक्लेम किया, हाँ, राजा ने बोला जाके प्रोक्लेम करो. क्या? He would give a great reward to anyone who would teach him what the right time was for every action, who the most necessary people were, and how he might know the most important thing to do. तो क्या प्रोक्लेमेशन किया उन्होंने, क्या अनाउंसमेंट किया कि जो आदमी उनको बताएगा या सिखाएगा हर एक्शन का सही टाइम और सबसे ज़रूरत वाले लोग और सबसे ज़रूरत वाली चीज़ जो उनको करनी चाहिए, इसके बारे में उनको सिखाएंगे तो उसको एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है. सो व्हाट डिड ही प्रॉमिस द पीपल? दैट हूएवर टॉट हिम द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, द मोस्ट नेसेसरी पीपल, एंड हाउ ही माइट नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, ही वुड गिव देम अ ग्रेट रिवॉर्ड. सो लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेस्ड. Many learned people came to the court, but they all gave different answers. ठीक है, सबने अलग अलग जवाब दिए. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. तो पहला क्वेश्चन क्या था? The right time for every action. तो उसके लिए लोगों ने क्या कहा? तो for the right time for every action क्या करना पड़ेगा? पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, 3 महीनों का और सालों का, और उसके हिसाब से, बिल्कुल उसके हिसाब से जीने का. Then others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. फिर कुछ लोगों ने बोला कि हम नहीं बता सकते पहले ही कि सही टाइम क्या होता है कोई एक्शन करने के लिए. ठीक है. But that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do that which was most essential. तो idle time pastime मतलब टाइम पास करने से, बेकार का फालतू टाइम पास करने से अच्छा है जो जरूरतमंद चीजें करनी चाहिए, और सब क्या तो टाइम पास नहीं करना और जरूरतमंद चीजें करनी चाहिए, और जो भी अभी उस टाइम में करने के लिए जो चीजें हैं वो सब करते रहना है. ठीक है. तो किसी ने ये बताया, किसी ने ये बताया, फिर और किसी ने और क्या बताया. Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, and that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. फिर और भी लोगों ने क्या कहा कि एक ही आदमी से पॉसिबल नहीं है कि सही समय, हमेशा हर चीज के लिए सही समय कैसे बताए. तो आपको किंग, हे राजा, आप ना एक काउंसिल तैयार करो बुद्धिमान लोगों का, जो आपको सही टाइम फिक्स करके बताएंगे क्या करना चाहिए कब. ठीक है. तो ऐसे अलग अलग टाइप के उनको सजेशंस आने लगे. ठीक है. नाउ इक्वली वेरिड वे द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या था उनका? मोस्ट नेसेसरी पीपल. तो उसके लिए क्या क्या आंसर दिया? वेरिड मतलब अलग अलग. ठीक है. सम सेड द पीपल, द किंग मोस्ट नीडेड वेर इज काउंसिलर्स, जो उनको एडवाइस देते हैं ना. किसी ने बोला जो सबसे जरूरत वाले लोग जो आपको जरूरत है वो है आपके एडवाइजर्स. दूसरों ने बोला प्रीस, या तो जो पुजारी. फिर किसी ने बोला डॉक्टर्स, एंड सम सेड वॉरियर्स, यानी कि सोल्जर्स वे द मोस्ट नेसेसरी. ठीक है. सबका अलग अलग जवाब था. टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. थर्ड क्वेश्चन क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? तो सम रिप्लाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस. किसी ने बोला साइंस जानना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अदर सेड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर. किसी ने कहा लड़ाई में एकदम फर्स्ट क्लास होना बहुत जरूरी है. एंड अदर्स अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप. किसी ने बोला भगवान की पूजा करना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरत काम है. द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर्स एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन. अभी तीनों क्वेश्चन के लिए बहुत कई लोग आए, कई लोगों ने जवाब दिए, लेकिन किंग वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड.
और उसने अपना जो रिवॉर्ड प्रॉमिस किया था किसी को भी नहीं दिया. ओके. He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom. The hermit lived in a small hut in a forest which he never left. He spoke only to common folk. So the king put on simple clothes and approaching the hermit's cell, dismounted his horse and left his bodyguard behind. तो ये जब उनको सही सवाल जवाब नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, एक हर्मिट यानी कि जो अपने साधु टाइप रहते हैं ना, जो पहाड़ में चले जाते हैं अलग से जीने के लिए अकेले में, उनके पास गया. और वो हर्मिट ऐसा आदमी था, वो एक छोटे से हट में रहता था जंगल के बीच में, और किसी से सिर्फ जो सादे सीधे लोगों से, कॉमन फोक मतलब हम जैसे सादे लोगों से ही बात करता था. तो ये किंग को ये पता था, तो उसने क्या किया, सादे कपड़े पहने और वो हर्मिट के पास गया और अपने जो उसके जो सोल्जर्स थे सबको पीछे छोड़ के अपने आप अकेला गया. When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. He greeted the king but went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he struck the ground with the spade and turned over a little earth, he breathed heavily. The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay most attention? And what affairs are the most important and need my first attention? तो जब राजा वो हर्मिट के पास पहुंचा तो हर्मिट क्या कर रहा था, हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड, मतलब अपने घर के आगे जो जमीन था उसको खोद रहा था. तो उसने राजा को देखा तो उसने सलाम किया, फिर भी खोदता गया, सलाम करके खोदता गया. और वो बहुत ही कमजोर जैसा था ना, अकेला रहता था, बुढ़ा था, तो कमजोर और पतला सा था. तो हर बार वो जब खोदता था तो वो बहुत ही थक जाता था. तो राजा उसके पास गया और उसने अपने जो 3 सवाल थे उसको पूछे. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग. उसने सुना और कुछ बोला नहीं. ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम्ड डिगिंग. रिज्यूम मतलब फिर से शुरू किया, मतलब रुका और फिर से शुरू किया. द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर अ while, and feeling sorry for the hermit, he said, You are tired, let me take the spade and work a while for you. The hermit silently handed over the spade and sat down on the ground. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade and said, Now rest a while and let me work a bit. But the king did not give him the spade and continued to dig. तो जो जो सवाल राजा ने हर्मिट को पूछा, हर्मिट ने उसका जवाब तो दिया नहीं, ठीक है, वो अपना काम करता गया. फिर ना राजा को ने देखा कि कितना बुढ़ा और कमजोर था ना वो हर्मिट, तो उसने बोला चलो मैं आपको मदद करता हूँ. तो हर्मिट ने उनको स्पेड दे दिया. देन द किंग स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड एंड ही डग हाउ मेनी बेड्स, 2 बेड्स ही डग. तो ये क्यों खोदते थे, बीज डालने के लिए ना, खाना ये बीज बोने के लिए. फिर जब 2 बेड डिग करने के बाद किंग ने दोबारा ये सेम सवाल पूछे, लेकिन फिर से वो हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया. उसने क्या किया, मेरे को अभी बोला मेरे को स्पेड दे दो, तुम अब थोड़ा आराम करो. लेकिन राजा बहुत अच्छा था, उसने बोला नहीं मैं ही करूंगा. ठीक है. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise one, for an answer to my questions. If you can give me none, please say so, and I will go home. Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. फिर 1 घंटा निकल गया, ठीक है, और सूरज डूबने लगा. फिर फाइनली वो किंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया. उसने बोला यार अगर आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हो तो मुझे बता दो, जवाब नहीं दोगे तो मुझे बता दो, तो मैं चला जाता हूँ, घर चला जाता हूँ. फिर हर्मिट ने अचानक से कहा देखो कोई तो भाग के आ रहा है, देखते कौन है. द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट. एक आदमी, एक बियर्डेड मतलब दाढ़ी लगाया हुआ एक आदमी जंगल से भाग के आ रहा है. द मैन held his hand pressed against his stomach. उसका हाथ उसके पेट की तरफ ऐसा पकड़ा हुआ था. and blood was flowing from under them. When he reached the king, he fainted and fell to the ground, moaning feebly. जब वो राजा के पास पहुंचा ना तो वो एकदम गिर के रोने जैसा हो गया, मतलब वो एकदम कमजोर और ऐसा ना रो रहा था दर्द से. मोर्निंग मतलब दर्द से रोना. The king and the hermit unfastened the man's clothing. Unfasten मतलब खोलना, अनफैसन, फैसन मतलब बांधना और अनफैसन मतलब खोलना. तो किंग और हर्मिट ने क्या किया, फटाफट उसके कपड़े निकाले. देयर वाज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. उसके पेट में बहुत गहरा चोट था. द किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड एंड बैंडेज्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ एंड अ टॉवल द हर्मिट हैड. तो राजा ने क्या किया, फटाफट उसको उसका वुंड धोया और उसको अपने हैंडकरचीफ से बांधा.
फिर और टावल भी यूज किया हर्मिट का, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन उसका इतना ब्लीडिंग हो रहा था कि ब्लड रुक ही नहीं रहा था। तो किंग बार बार धोके उसका बैंडेज बार बार धोके उसको बार बार सोक करके साफ कर रहा था। When at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink. The king brought some fresh water and gave it to him. Finally वो थोड़ा सा बेटर लगने लगा उसको, तो फिर फाइनली वो थोड़ा सा होश में आया और उसने बोला मुझे थोड़ा पानी चाहिए। Meanwhile, the sun had set and it had become cool. So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut. The man lay there quietly with his eyes closed. By now, the king was so tired after his walk and the work he had done that he lay down himself and also fell asleep. When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was and who was a strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake and was looking at him. "I do not know you and I have nothing to forgive you for," said the king. Okay, तो जब रात हो गई ना, तो किंग और हर्मिट ने मिलके आदमी को अंदर हट के अंदर लेके जाके उसको लिटा दिया और वो सो गया। और राजा भी इतना थक गया कि वो भी उधर ही सो गया उसके साइड पे। फिर वो जब सुबह उठा ना, तो उसने देखा अरे ये पहले देखा अरे कौन, मैं किधर हूँ ना, उसको तो अपने कंफर्टेबल बेड में सोने की आदत होगी, तो जमीन में सो रहा होगा। हाँ, तो देखा ये कौन है दाढ़ी वाला आदमी मेरे साइड में। फिर वो आदमी ने क्या बोला, मुझे माफ करना, फॉरगिव मी। हाँ, मतलब मुझे माफ करना। हाँ, तो किंग ने क्या बोला, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ और मेरे को तुमको माफ करने के लिए भी कुछ नहीं, ऐसा कहा। तो फिर वो आदमी ने कुछ तो कहा, "You do not know me, but I know you." आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। "I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property." ठीक है, तो राजा ने ये आदमी के भाई को मरवा डाला था। ठीक है, तो इस आदमी ने बोला था मैं मेरे भाई का कत्ल रिवेंज लूंगा, मतलब मैं बदला लूंगा, तो इसलिए ये राजा के पीछे आया था। "I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back." अभी ये इस आदमी को पता था कि राजा अकेला गया है हर्मिट को मिलने के लिए, और इसने निर्णय लिया था कि वापस जाने के रास्ते में उसको मार देगा राजा को। "But the day passed and you did not return." लेकिन आप देख रहे हैं ना, वो तो भाग भाग के इधर आया, लेकिन रात शाम ढलने लगी और राजा तो आया नहीं। "So I came out of my ambush to find you." तो ये ना जहाँ छुपा हुआ था ना, उससे बाहर निकल गया देखने के लिए कि राजा है किधर, आया क्यों नहीं अभी तक। तो योर बॉडीगार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। तो बॉडीगार्ड्स ने, किंग के बॉडीगार्ड्स ने पहचान लिया इसको और उसको चोट पहुंचाई। "I escaped from them but would have bled to death had you not dressed my wound. I wished to kill you but you have saved my life. Now if I live and if you wish it, I'll serve you all my life." ठीक है, तो ये बच के निकल गया बॉडीगार्ड से, लेकिन वो आके किधर पहुंचा, राजा के हाथ में, और राजा ने उसका इतना अच्छा देखभाल किया कि उसकी जिंदगी बच गई। तो अभी उसने क्या बोला, अगर मैं अभी जीऊंगा और अगर आप मुझे जीने के लिए आमंत्रण देने का मतलब उनको, अगर राजा के ऊपर कोई हाथ लगाए तो उसको मरने की दंड मिल जाती है ना, तो अगर राजा उसको माफ करेगा और उसको जीने देगा तो वो क्या बोला, मैं आपको जिंदगी भर के लिए आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद एन एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड। अभी राजा भी बहुत खुश हो गया कि यार मैंने इतने आसानी से मेरे दुश्मन के साथ शांति बना ली और एक दोस्त भी मैंने पा लिया। He not only forgave him but said he would send his men and his own physician to attend to him. उसने, राजा ने उसको माफ भी किया और बोला मेरा खुद का डॉक्टर तुमको देखेगा। The king then took leave of him and went out of the hut to look for the hermit. अभी राजा उससे बाहर निकल के hermit को ढूंढने गया। Before going away, wished once more to beg for an answer to the questions he had asked. ठीक है, उस राजा ने बोला यार एक और बार लास्ट ट्राई मार के देखता हूँ ये hermit मुझे कुछ जवाब देगा कि नहीं। The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. आज वो hermit बीज बो रहा था। The king approached him and said, "For the last time I pray you to answer my questions, wise man." बोला अरे बुद्धिमान आदमी, मेरे को आज के लिए एक लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे सवालों का जवाब दो। You have already been answered. क्या बोला hermit? अरे तुमको सवाल के जवाब मिल चुके हैं। He was still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. Crouching मतलब bending, वो नीचे बेंड करके बीज बो रहा था ना, उधर से ऊपर देख के उसने उसको बोला तुम्हारे तो सवालों के जवाब तुमको मिल गए। What do you mean? asked the king. इसका क्या मतलब है, पूछा king. Do you not see? क्या तुमको अभी तक समझ में नहीं आया क्या? Replied the hermit. If you'd not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man.
इसका क्या मतलब है? अगर तुमने मेरी कमजोरी के ऊपर दया करके मेरे को थोड़ा सा जमीन खोद के देने के लिए रुके नहीं होते तो तुम वापस चले गए होते थे, और अगर तुम वापस चले गए होते तो तुमको इस आदमी ने मार दिया होता था. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man and to do me good was your most important business. अभी इसमें तीनों उसके जवाब मिल गए. तो क्या था सबसे important टाइम? क्या था? जब वो उसका बीज बोने का बेड खोद रहा था. और सबसे important पर्सन कौन था? हर्मिट, है ना? आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टू डू मी गुड. और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? हर्मिट के लिए कुछ अच्छा करना सबसे इंपॉर्टेंट काम था. आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर अटेंडिंग टू दैट मैन. उसके बाद क्या था सबसे इंपॉर्टेंट टाइम? जब वो आदमी का चोट को ये पट्टी बांध रहा था. फॉर इफ यू नॉट बाउंड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू. क्योंकि अगर तुमने उसको ध्यान नहीं दिया होता तो वो खून बह के वो आदमी मर जाता और तुम उसके साथ कभी भी शांति नहीं बना पाते थे, है कि नहीं? सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन. तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आदमी था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. और तुमने जो उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम था. रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ. तो याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है? अब. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर. तो हम कल कुछ अच्छा करेंगे ऐसे सोचेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. आप सब अभी ये जो समय हमारे पास है, आज का समय, ये अब का समय, ये हमारे हाथ में है कि नहीं? तो इस टाइम में हम सबसे अच्छा जो कर सकते हैं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ होम यू आर. आप अभी इस वक्त अब जिस पर्सन के साथ हो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है. For you do not know whether you will ever have dealings with anyone else. क्योंकि आपको ये नहीं पता आप किसी और के साथ कुछ और डीलिंग कर पाओगे. क्योंकि अगर आपकी मौत हो गई तो फिर आप क्या डीलिंग करोगे? तो आपके साथ अभी जो आदमी है वही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू दिस पर्सन गुड. तो आपके पास जो आदमी है उसके लिए कुछ अच्छा करना वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है. बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन यू सेंट इन टू दिस लाइफ. अच्छा करने के लिए ही आपको इस दुनिया में भेजा गया है. तो हम सबके लिए क्या है सीखने के लिए इधर? सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है? अब. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन विथ whom you are now. And the most important business or the thing you can do is to do good to that person. Okay? तो इन समरी हिंदी में भी बता देती हूँ. सबसे नेसेसरी है, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? अब. सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है? आपके पास जो अभी है वो इंसान, आपके साथ जो अभी है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है आपके लिए? आपके साथ जो इंपॉर्टेंट इंसान है उसके लिए कुछ अच्छा करना. दैट्स योर job in life. So with this we finish our story, the 3 questions. Okay, so now in the next video I will be teaching you the workshop, English workshop for this lesson, as well as some of the questions on the green portion of your textbook. Okay, please go through this story nicely and also try to apply some of these things into your personal life. Thank you.